Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. We have done 4 videos of the chapter in Constitution Why and How, and we are able to understand a lot of things regarding the Constitution, its meaning, its function, requirement of the Constitution, and from where the Constitution gets its authority, which kind of Constitution will be able to sustain, which factors are there which determine the success of the Constitution, and by which manner we can inculcate the feeling of security in the minds of the every individual. All these things we have discussed in the previous classes. And in today's video, we are going to study balanced institutional design. We will study it. अब देखो क्या होता है, sometime we are able to see that people are not having any kind of confidence in their country's constitution, and they try to subvert their constitution. Now what's the meaning of subvert? Subvert means होता है to destroy. If the people will not be having any kind of trust in that, they will try to destroy it. That is very much normal thing, right? And this feeling, this action will be done by the small groups only. And why they will do so? To enhance their power, because there is a feeling of insecurity in their mind at any place, that government or the constitution is not looking after them. There is no one who is taking care for their consent, for their ideas, for their concerns, right? And if these kind of things are happening, so that is definitely that people will protest, people will subvert the constitution. But if we see the example of our country, as we have studied now, the people of our constitution who framed it, they were completely credible leaders. So how did they try to distribute the power? They have divided the power so intelligently that any single party, any single group is not able to subvert it. And why is it so? Because we have given power, we have given authority to each and every group. And that's why it's resulted that no any single group is able to create its monopoly, right? And we have done it through the various institutions. We have made lot of institutions and we have divided the powers among all of them. Let us see the example from your class only. In your class, there is a student who is your class monitor, another can be your discipline monitor, and any other student can be your language monitor also. What is the objective? To decentralize the powers so that class can be disciplined. There cannot be any kind of those activity which try to destroy the discipline decorum of the class, right? So the same things happen with the country also ना. हम ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि सोसाइटी में एक ऐसे ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाए कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की मोनोपोली एस्टेब्लिश ना हो. And for that, the framers of our constitution has done an excellent work. How they have distributed the power? In India, the constitution has divided the power horizontally also and vertically also. अब देखो हॉरिजॉन्टली डिवीजन कैसे होती है. हॉरिजॉन्टली डिवीजन आप लोग सब पढ़ के आए हो ना मैथ्स में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, राइट? तो हॉरिजॉन्टली वेयर वी आर एबल टू सी द बेस इज सेम, right? In the same manner, in the government, we are having the organs of the government, different organs of the government, and we are able to see that that their level is same. Why is the same? Because they are having some kind of specific powers within them, and on the behalf of that, we have divided power horizontally among the 3 organs of the government, that is legislature, executive, and judiciary. You know it very well. And we have specified their task. How we have done it? That we have
डिवाइडेड द jurisdiction ऑफ एवरी ग्रुप। हर एक ग्रुप को आपने उसका क्राइटेरिया बताया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी अथॉरिटी सिर्फ यहीं तक है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, हमें क्या पता है, लेजिस्लेचर का वर्क सिर्फ लॉज को फ्रेम करना है, राइट? एग्जीक्यूटिव, व्हाट डू वी नो अबाउट इट? दैट द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, हमें पता है। तो उसका टास्क क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। एंड वन ऑर्गन दैट इज जुडिशरी। तो हमें ये पता है कि अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो देयर इज जुडिशरी टू चेक एवरीथिंग। ये डिवीजन तो हमने कर दिया, बट अलोंग विद दैट वी हैव डिवाइडेड द पावर इन दैट मैनर दैट देयर कैन नॉट बी monopoly of any single group, and this type of system is known as check and balance। मतलब आपने पावर डिवाइड तो कर दी, बट आपने किसी एक सिंगल ग्रुप को इतनी पावर्स और अथॉरिटी नहीं दी कि वो दूसरे को ओवरकम कर ले। नाउ अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, चेक एंड बैलेंस, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेक एंड बैलेंस, और हाउ कैन वी सी, or how can you say that Indian constitution is showing the example of check and balance? अब देखो कैसे होते हैं चेक एंड बैलेंस। वी आर हैविंग थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का वर्क है लॉ की फॉर्मेशन, बट जो लॉज बनते हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट ना करें। अगर ऐसा होता है तो देर इज जुडिशरी टू चेक इट, और अगर ऐसा कोई लॉ बनेगा देन जुडिशरी इमीडिएटली विल डिक्लेयर इट इलीगल। In the same manner, executive is responsible for the execution of the law, right? अगर ऐसा होगा तो फिर judiciary again it will say that it is not according to the spirit of the constitution, and the law again will be illegal। यहां से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि फिर तो जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यस, वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इंटरफेयर से कंप्लीटली बाहर है, बट इवन देन वी आर हैविंग अ कंट्रोल ओवर जुडिशरी ऑल्सो। अब देखो वो कैसे होता है। हमारी लेजिस्लेचर जो होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू जुडिशरी को उनकी अथॉरिटी से रिमूव कर सकती है, एंड द प्रोसेस इज नॉन विद द नेम ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस। यानी जुडिशरी भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, हालांकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट वो आपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस किसी ऑर्गन को नहीं दी कि वो दूसरे को कंट्रोल कर ले। इन द सेम मैनर अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो एग्जीक्यूटिव भी आंसरेबल है हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स। और अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा टास्क करता है जो अप्रोप्रिएट नहीं है तो लेजिस्लेचर विल पास नो कॉन्फिडेंस मोशन और एग्जीक्यूटिव को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा फ्रॉम देयर अथॉरिटी। So we are able to see that every organ is independent in its jurisdiction, in its area. But even then, there are restrictions on every organ of the government. No one is completely independent so that it can create their control over any other organ. This type of structure, this type of function is known as check and balance. I think it is completely clear to all of you, right? Along with this, और क्या चीज है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल बनाती है? दैट इज द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कुछ कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड बना दिया कि वो चेंज ही नहीं होता है, कुछ कंट्रीज ने इतना फ्लेक्सिबल बना दिया कि वो हर दिन चेंज हो जाता है। बट वी आर इंडियंस ना, सो वी every time try to create some unique features, some unique examples, and because we come from the country of Lord Buddha, right? तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ यूनिक चीजों को इन्वॉल्व करवा दिया, एंड दैट इज द मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो, रिजिड जिसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर ऑफ बोथ, कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप इजीली चेंज कर दोगे और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें इजीली चेंज नहीं हो सकता। But this thing shows the intelligence of the framers of our constitution,
कि आपको सोसाइटी में बैलेंस कैसे बनाना है। इफ वी आर एबल टू सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, तो देर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि चेंजेस आर रिक्वायर्ड, राइट? Change is the rule of nature, and that's why constitution will also have to be changed. But remember, we are able to change the provisions of the constitution, we are able to add something, right? But we have never demanded for the change of complete constitution. And this is showing that in which manner our constitution makers have done their efforts, so that every people is able to feel himself or herself connected with the constitution, and they are feeling that yes, my contribution is also there, right? और ये जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की, that we can change it according to the changing situation, it is not that much rigid, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाती है? क्योंकि देखो, चेंजेस कहाँ नहीं होते हैं, जो चीजें डेड होती हैं, राइट? इफ यू आर अलाइव, चेंजेस विल बी देयर, every time we are able to see some kind of changes. The same things with the constitution also. That's why Indian constitution is known as living document, कि आप उसमें changing position के according change कर सकते हो. And this is going to be the whole chapter, constitution a living document. And by this we try to make a balance, we try to create limits on the powers of the government, we try to include some kind of values. So I think check and balance is also clear to you, and mixture of flexibility and rigidity, or Indian constitution is the example of living document. This thing is also clear to you. So if you have studied this much chapter, there are some questions, and the question are from you. And if you have listened my all the things carefully, you will be able to answer this question easily. अब देखो क्वेश्चन क्या, ऑल दो वी विल बी डिस्कसिंग दीज आइडियाज इन द नेक्स्ट वीडियोज, नेक्स्ट चैप्टर, बट इफ यू हैव लिसन माई 4 videos केयरफुली, यू विल बी एबल टू आंसर. अब देखो, वर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बट अगर आपने इतना पढ़ा कि क्या वो लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो क्रेडिबल थे, तो your answer will be yes, of course, because they were having the understanding of each and everything from Indian context. They have understood the social structure completely, right? और उस सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था. योर आंसर वाज करेक्ट, राइट? सेकंड, the constitution ensured the power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution. This thing also very clear. अभी अभी मैंने पढ़ाया कि आप लोगों ने, हमारी कंट्री में जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेमर्स ने कैसे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें चेंज तो होते हैं, राइट? उसमें पावर्स भी गिवन है, लेकिन वो किसी एक ग्रुप को ऐसे पावर डिवाइड नहीं करता कि वो दूसरे ग्रुप की पावर्स को सबवर्ट कर ले, कंट्रोल कर ले, राइट? एंड द थर्ड इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन. अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और क्योंकि अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो होप्स के साथ, एस्पिरेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके चलेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वी हैव सीन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ द सेम, राइट? So I think you are also able to answer these questions because all these things we have discussed already. So next we are going to study how was the Indian constitution made. अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना कैसे? अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने 1946 से इसको बनाने की प्रोसेस शुरू की और 1949 तक इसको बनने की प्रोसेस चलती रही. एंड 9 दिसंबर 1946 वाज द डेट जब हम असेंबल हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, राइट? लेकिन अब देखो, हमें रीअसेंबल करना पड़ा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. अब उसके पीछे रीजन क्या था? यू ऑल आर अवेयर अबाउट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. अगर पार्टीशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग जो मेंबर्स थे पाकिस्तान में चले गए, राइट? तो हमें रीअसेंबल करना पड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को.
लेकिन जो ये मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, आखिर वो बने कहाँ से, मतलब उनके पास अथॉरिटी आई कैसे कि यही लोग होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वाज नॉट फॉलोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, देयर वाज नो रेफरेंडम आल्सो, बट वी वर हैविंग दैट मच ऑफ क्रेडिबल लीडर्स दैट वी आर एक्सेप्टिंग इट टिल नाउ, राइट। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और ये जो प्रोविजंस थे हमने ये कहां से लिए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुए थे, हालांकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस करवाए थे, रेगुलेटिंग एक्ट थे, कहीं पे चार्टर एक्ट थे, बहुत सारे एक्ट पास हुए। उनमें एक एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एक रफ आइडिया बताया गया था कि असेंबली कैसे डिजाइन होगी, और एक इसके लिए एक प्लान आया था जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, राइट, जिसने एक आइडिया प्रोवाइड करवाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम होगी। अब अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान, वो क्या आइडिया था कि आप, अब देखो इंडिया का जो स्ट्रक्चर था ना वो टू पार्ट्स में कैटेगराइज था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रोविंसेस किसको बोलते हैं, प्रोविंसेस जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और प्रिंसली स्टेट्स जहां पे कंट्रोल इंडियंस का था, मतलब किंग और प्रिंस हो सकते हैं इंडिया के, बट सुप्रीम अथॉरिटी दैट वाज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, कि हमने जो रफ आइडिया दिया कि ऑलमोस्ट 10 लाख की पॉपुलेशन पे आपको एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना है। और इसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि 292 मेंबर्स तो जाएंगे हमारे प्रोविंसी स्टेट से जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और 93 सीट्स दे दी गई उन मेंबर्स को जो प्रिंसली स्टेट से थे। समझ आया, मतलब 292 मेंबर्स थे प्रोविंसी स्टेट से, और जो 93 सीट्स थी वो एलोकेट कर दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि जितनी भी सीट्स थी, अब हमने क्या चेक किया, ब्रिटिशर्स ने ना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कंट्री में, और जिसका उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज भी मिला था, दैट वाज डिवाइड एंड रूल, जिसके बिहाफ पे उन्होंने इंडिया का पार्टीशन भी करवा दिया। और सेम चीज उन्होंने यहां भी बोली कि प्रोविंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तीन मेजर कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख और जनरल। और वो होगा कैसे, आपकी पॉपुलेशन के बिहाफ पे होगा, कि आपने हर एक प्रोविंसेस को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करना है। उसके बाद फिर क्या होगा, हर एक कम्युनिटी अपने मेंबर्स को इलेक्ट करेगी, और वो कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्शन के ना दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं एफपीटीपी, जो आप इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में डिटेल से स्टडी करोगे, और एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो हमारी कंट्री में जो सिस्टम अभी प्रेजेंट में है वो क्या है, दैट इज एफपीटीपी। कैसे, कि मान लिया इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम क्या चेक करते हैं कि एक जो कैंडिडेट है उसको औरों से ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए, एंड इफ ही और शी इज एबल टू गेट, वी डिक्लेयर हिम एज द विनर, राइट। बट प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन में ये नहीं देखा जाता कि आपको औरों की कंपैरिजन में कितने ज्यादा वोट्स मिले, बल्कि ये चेक किया जाता है कि आपको कितने परसेंट वोट मिले, आपकी पार्टी को कितने परसेंट वोट्स मिले। और जितने परसेंट वोट्स आपको मिलेंगे, उतने ही परसेंट सीट्स आपको मिल जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। मान लिया फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आप आज का एग्जाम्पल लो, और सपोज कि बीजेपी को ना 50% वोट्स मिली है, तो उनकी सीट्स सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में 50% होंगी, कंप्लीट बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितनी सीट्स आपको मिली उतने ही परसेंटेज आपको वोट्स, उतने ही परसेंट आपकी सीट्स, जितनी वोट्स उतनी ही परसेंट आपकी सीट्स सिक्योर हो जाती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये सिस्टम हमने यूज किया था उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के लिए। आई थिंक द बेसिक इट इज क्लियर टू यू कि एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। डिटेल में इसमें हम थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो इसके बाद और क्या होता है, और क्या हुआ, द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। और प्रिंसली स्टेट्स को क्या बोला गया कि आप डिस्कस कर लो, कंसल्ट कर लो एक दूसरे के साथ, और फिर अपने मेंबर्स भेज देना।
राइट। मतलब उनके पास ये फ्रीडम थी कि वो कंसल्ट करके अपने मेंबर्स को भेज सकते थे। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने का कि अब ये मेंबर्स होंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे ना कुछ आइडियाज गिवन है दैट आर गिवन बाय द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें उन्होंने ना 3 बेसिक आइडियाज दिए हैं। बेसिक आइडियाज कौन से हैं कि सोशल डेमोक्रेसी, उन्होंने आइडियाज दी कि सोशल डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश होगी, राइट। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का तब तक कोई यूज नहीं है जब तक सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं होती। और सोशल डेमोक्रेसी कब एस्टैब्लिश होगी, जब आपकी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है 3 वैल्यूज को। वो 3 वैल्यूज है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 लाइंस आपने एज इट इज पढ़ी होंगी इन योर 9th क्लास इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये आइडिया हम लोगों ने वहीं से डिराइव किया, वहीं से कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड। अगर ये तीनों को आप सेपरेट कर दोगे ना, तो इन एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखो, अगर आपने लोगों को लिबर्टी दे दी बट इक्वालिटी नहीं दी, तो क्या होगा, उस लिबर्टी का एडवांटेज सिर्फ सोसाइटी के उन लोगों को मिलेगा जिनकी पोजीशन अच्छी है, और वो कुछ एक ग्रुप होंगे जो सोसाइटी को कंट्रोल कर लेंगे। अब उसके बाद अगर आपने इक्वालिटी दे दी बट लिबर्टी नहीं दी, राइट, तो फिर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं लोगों के सेंटीमेंट्स को, इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स को किल कर देगा, क्योंकि आपने लिबर्टी तो लोगों को वर्क करने की दी ही नहीं, राइट। और फ्रेटर्निटी क्या होता है कि अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो आपका क्या बन जाता है, वो इक्वालिटी और लिबर्टी, वो कहीं ना कहीं आप उसको जस्ट पर्सनल इंटेंशंस के लिए यूज करते हो। उसके बाद आप एक ऐसी सोसाइटी नहीं बना सकते जो एक जस्ट सोसाइटी हो, राइट। तो अगर आप एक्चुअल में, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे हो तो इट मीन्स देयर शुड बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑल्सो। बट अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, अगर आप पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो पहले सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और उसके लिए 3 पिलर्स आर देयर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिनका एक दूसरे के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो completely clear to you. If you are having any kind of doubt till now, you can ask your doubts, you can ask your queries in the comment section, right? And from my side, I think till here everything is clear to you. But even then, if any query is there, feel free to ask everything in comment section, right? And rest of the part, some important functions, some important features of Indian Constitution, we will study in the next part. Till then, keep studying, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.